फतेह। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे चरना कमलों दे विच कदम कदम चलते हुए संध्या दे दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। शुभ घड़ियां प्राप्त हुई ने। सफलियां बनाइए। गुर इतिहास के पावन प्रसंगां विचों आप जी ने सरवण कीता सी। जदों भगत प्रहलाद जी ने देवतियां की बेनती मनते हुए नरसिंह की महिमा सन्मुख जाके कीती, उन्हें खुशी के घर विच आके गल नाल लाया। राज तख्त का तिलक दिता। इक्की कुलां नूं उधार दिता। ये वर दे के परमात्मा जी अंतर ध्यान हो गए। कई हजार साल वरे प्रहलाद भगत जी ने मुल्तान की धरती ते राज किया। इन्हां सारे प्रकरणों का आप जी ने आनंद प्राप्त किया है। आओ कुछ समा मन चित व्यक्तियां नूं एकाग्र चित बढ़ाइए। बख्शो आसीस गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा श्री गुर पग कर सिपर सर बान जे सर्ब विकार। कवि भाई संतोख सिंह जी गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की पावन सिफत सलोता लिखते हुए अगले प्रसंग की आरंभता करते ने। गुरु दे चरण कमल सिख की ढाल वर्गे ने। जिवें एक ढाल तलवारां दे वार तीरां दे वार रोक लैंदी है। जदों सिख नूं चरना कमलां दी ओट मिलदी है, विकारां दे तीरां तो सतगुरु आप ही बचा लैंदे। प्रसंग की आरंभता दे विच कवि जन उस्तत करते ने, महिमा गाउंदे ने। गुरु दे चरण एडे समर्थ हन, बेकारां विचों कढ के गुणां दी खान बनाउंदे ने। करते ही ओट बचाई के कहूं कथा सुख सार। बेनती करते ने पातशाह दे प्रसंग कहण तो पहला मैनू इस विकार तो बचा लई, क्योंकि इन्हां प्रसंगां दे विच कवि जी ने खुल के विकारां दा जिक्र किया।
ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਊਣਤਾ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕਿਤੇ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕਥਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਓ, ਕਿਤੇ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਭਟਕੇ ਨਾ। ਚੌਪਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਣ ਕਥਾ ਰਸਾਲਾ, ਅਗਰਜ ਗਮਨੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਥਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਕਈ ਪਰਬਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਗਏ। ਤਬ ਮਰਦਾਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ, ਧਰਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਵਤਾਰਾ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਵਰਾਹ ਮਤਲਬ ਸੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ 24 ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਸਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਮੈਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਕੜੀ ਜੁੜ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਿਰਣਕਸ਼ਪ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰ ਨੇ, ਸੂਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਸਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਸੂਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਰਸਿੰਘ ਬਣਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੱਛੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੱਛ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਟਿੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕਦਮ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕਥਾ ਪੁਰਾਣਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਿਰਨਾਸ਼ਿਸ਼ ਦਾਨ ਵਹਿਨ ਕੈਸੇ, ਧਰਨੀ ਆਨੀ ਭਾਨੀਏ ਤੈਸੇ। ਆਪਾਂ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਣਕਸ਼ਪ ਦਾ ਭਰਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਹੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ, ਖੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਾਇਆ? ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ।
क्योंकि ये वो कथा है जो अज तो हजारां लखां साल पहला हकीकत विच हो चुकी है। पर भाई मरदाना जी कहते महाराज सानू किहने सुणाउणी है? ऐसी कथा सुनने वास्ते 4 वेदां की सोधी चाहिए है, ज्ञान चाहिए, संस्कृत आनी चाहिए है। हुण ना किसी को संस्कृत आवे ते ना कोई इस कथा बारे जाने। गुरु नानक साहब महाराज ने अपने प्यारे सिखां की बेनती को स्वीकार करके कथा सुनानी शुरू की। मरदानिया जिन्ने तेरे सवाल ने नाल दी नाल पुछ लवी। इन दैतन को जन्म जो करैं सो कहिए श्री गुर गुण पूर। ते तीजा सवाल भाई मरदाना जी ने यह कीता, महाराज हरनाक्ष वर्गे दैत जम्मे ही क्यों? सवाल ही बड़ा बड़ा कर। सतगुरु कहते मरदानिया ये भी खेडा रब दी ने। परमात्मा की खेड किड्डी क वड्डी है कि इनू मनुख नहीं जान सकता। अज दी कथा दे विच मैं फिर बेनती करदा जरा सावधान हो के बैठे, सावधान, क्योंकि है कुछ भी नहीं ते सोच दे नाल ही बहुत कुछ है। ये तुहाडी सोच ने वेखना भी तुसी किहो जी सोच रखदे हो। जे ते मान लो अज दी कथा सुनते तुहाडे अंदर थॉट गलत आउंदे आ, बुरे विचार, तो समझ लो भी तुसी सतसंग विच बह के भी कदे सुधर नहीं सकते। मैं भी जे अंदर बिरती दूजे पासे जा रही है, गलत पासे जा रही है। जे इस चीज उत्ते फोकस कीता ते बेस दी समझ आउंदी है, क्योंकि बेअंत प्रमाण तुहानू गुरबाणी विचों भी इदां दे मिल जाणगे जिह च सतगुरां ने जिक्र कीते आ। क्योंकि अज दी कथा दा आगाज गुरु नानक साहब करन लगे आ। कहंदे मरदानिया बिरती दुनियावी ना रखी, इस बिरती नूं धर्म दी पकड़ दे विच ही रखना है, क्योंकि कुछ ऐसा होने जा रहा है। उन्हें पूछया महाराज राक्षस क्यों जन्मे, ब्रा ने अवतार क्यों धारण किया ते राक्षसां नूं मारिया उन्हें क्यों? 3 वड्डे सवाल। गुरु बाबा जी ने चौंकड़ा ला के फिर गल खोल के सुनाई। 10वें दे विच सतगुरां ने इन्हां चीज़ां नूं बाखूबी खोलिया होया, खोलिया गुरबाणी विच भी बड़ी थां जिन्हां दे सानूं अर्थां दा नहीं पता। जिदन असीं अर्थ पढ़ ले असीं कहना ना जी ना, मैं तां नहीं संगत च सुना सकदा। क्यों नहीं सुना सकदा? जदों मेरा गुरु लिख रहा है, मेरा सतगुरु लिखदा है, पुरातन ते प्राचीन सनातन मत का जिन्ना इतिहास है, बेशक वो रलगढ़ है, पर गुरु साहब ने प्राचीन कथा सुनाई। जिवे जिवे होया धरती ते बीते आए, सुन कर कहन लगे गुण खानी, जो सुन आहे प्राण कहानी। सतगुरु कहते मरदानिया ये उस वेले की कथा है जो युग चलता सी सत दा। सतयुग तो भाव सत भगवान सी। कलयुग तो भाव की है? झूठ बिना दुकान भी नहीं चलती, झूठ बिना घर भी नहीं चलता, हर चीज विच कूड़ फिरै प्रधान वे ला लो। कलयुग इस करके कलयुग है, इत्थे हर चीज की शुरुआत, हर रिश्ते की बुनियाद, हर रिश्ते की शुरुआत झूठ तो हुंदी है। ते सतयुग दे विच हर चीज की आरंभता हुंदी सी सच नाल। घर भी सच सी, बाहर भी सच सी, बाजार भी सच सी, निरंकार ते रब दा नाम भी सच सी। सतगुरु कहते हो जो बहुती कथा पुरानी हो जाए उन्होंने कहा जाता है प्राचीन कथा, पुराणक। पुराणक तो भाव जो पुराणा दे विच लिखी हुई है। किन्ने पुराण ने? 18 पुराणा दे विच इन्हां कथावां दा जिक्र आउंदा है। भगत प्रहलाद दी कथा कोई आम नहीं, जुगां जुगां तो चली आउंदी है। एक समय कश्यप जग करके बैठियो सदन हर के और धर के। कहंदे एक समा सी सतयुग दे विच एक ऋषि होया जिहदा नाम सी ऋषि कश्यप।
ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਵੀ ਉਹੀ, ਸਾਧੂ ਵੀ ਉਹੀ, ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਛਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਯਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੱਗ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਯੱਗ, ਤਪ, ਦਾਨ, ਪੂਜਾ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਤਯੁਗ, ਦੁਆਪਰ ਤੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਗ ਕਰਨਾ, ਤਪ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਕਸ਼ਯਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਗ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਪੂਰਨ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਗ ਹੋਇਆ, ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜਗ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਸੰਧਿਆ ਕਾਲ ਸੁਤਾ ਦਖ ਕੀਰੀ, ਦਿੱਤੀ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਟ ਕਾਮ ਕਨੇਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਕੀਰ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਯਪ ਰਿਸ਼ੀ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਭਗਤੀ ਕਿੱਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਜਪਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਕਸ਼ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਦਿਤੀ। ਹੁਣ ਅਦਿਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਨੀ ਕਲੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੌਰੀ ਸ਼ੌਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਪਤੀ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਸ਼ਯਪ ਰਿਸ਼ੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦਾ ਏ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਅਦਿਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ। ਹੁਣ ਸੁਹੱਪਣ ਭਾਵੇਂ ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ, ਇਹ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਯਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਬੰਦਗੀ, ਨਾਮ ਨਾਮ। ਰਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਕਰੇ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਸ਼ਯਪ ਰਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਤਨੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਜਾਏ ਸਮੀਪ ਕਰੇ ਅਸ ਬਿਨਾ, ਤਨ ਮਨ ਮੋਰ ਕੰਪਾਵਾ ਮੈਨਾ। ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਭਗਤੀ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਸ਼ਯਪ ਰਿਸ਼ੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜਪਦੇ ਆ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਲਾਲੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੁੱਖ ਕਾਹਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮ ਦਾ ਰੋਗ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਿਤੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਧੂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਿਰਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖਿੰਡ ਜਾਏਗੀ। ਕਸ਼ਯਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕੁਟੀਆ ਤੋਂ ਛੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਪਤਨੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੀ। ਜਿਉ ਕਦਲੀ ਦਲ ਦੁਰਦ ਹਿਲਾਵੇ,
दीन जानत मुझ संतावे। कहती जी मेरे उत्ते कामदेव भारू बहुत ने। महापुरख कहती फिर नाम जप लिया कर, बंदगी कर लिया कर। कहती बंदगी मेरे वस दा काम नहीं है, मैनू ते काम सता रहे। हुण कलयुगी जीव उदों किहड़ा नहीं सी हुंदे। सतयुग दे विच की माड़े काम करन वाले लोग नहीं सी, बेतहाशा सी। की इस कलयुग दे विच चंगे काम करन वाले लोग नहीं? अज भी बहुत ने। बंदगी करन वाले बड़े आ, नाम जपण वाले बड़े आ। ऋषि महापुरख ने उन्होंने आख्या भी तू इथों बाहर जा, क्योंकि शाम का वेला है, भगती का समय। कदे उन्हें गंगा ते जाना, कदे जमुना ते जाके इशनान करना, चौंकड़ा ला के बंदगी च बैठ जाना। पर पत्नी का जीवन सी कलयुगी, रब नूं कदे चेते करया ही ना। होत समृद्धवान सब जोई, तिन पिखदा हिरदे मामे होई। कहती जियो जियो तुसी भगती करदे हो, त्यों त्यों मैनू काम दे तीर वजदे आ। हुण एक ऋषि जो लोकां दा जीवन ऊंचा चुकदा है, अपनी पत्नी नूं नहीं सुधार सकिया। तो सतनाम नहीं सुधार सकिया। जरूरी थोड़ा है हर बंदा सारियां नहीं सुधार सकदा। बंदा दुनिया नूं समझाउण जांदा है, लोकां दे कोर्टां 'च केस लड़दा एक वकील बन के, पर घरे घर वाली कहणे नहीं मानदी। लोकां दे समझौते कराउंदा, अपने समझौते घर 'च हो नहीं रहे। सतयुग वेले दा ये ऋषि कश्यप बंदगी वाला है, चढ़दी कला वाला है, जिहदे दर्शन ब्रह्मा करके कहंदा है मेरा अंदर खिड़ गया तैनू वेख के, तैनू मिल के लगदा रब मिल गया। कहंदे ओ ऋषि साधु भी घर तो परेशान सी। तुम किरपाल सब भांत पर बीने, एक समान अंगना सब चीने। हुण साधु दे कोल बैठ के गल्लां करे विकारां दियां। कहंदी वेखो जी सारियां औरतां इक्को जिहियां हुंदियां, विकार ते साडे शरीर दा एक अंग हन। फकीर कहंदा गल्लां छड्ड के कोई चज दी गल कर, कोई रब दी गल कर ला, कुछ होर सुणा दे। हुण औरतां दे कोल तुसीं कदे भी नोट कर लो, तकरीबन सारा दिन कपड़ियां दीयां गल्लां, एक दूजे तो सड़ी जाना, तो बात ही कुछ नहीं है। जा बस गल्लां पिछे ही सुनना हुंदा भी सब तो वध सोहणी मैं हाँ, सब तो ज़्यादा चंगी मैं हाँ। कदे वीरां कोलों गल्लां सुन लो, ये राजनीति तो बाहर नहीं आउंदे, फलाणे दी पार्टी आ जूगी, फलाणा जित जू। पर बीबियां नूं कदे कोई मतलब नहीं हुंदा। कदे नोट कीता इस जमाने दे विच किन्ने बच्चे साडे कैनेडा गए हुए आ, कदे कोई लड़की अगे आके किते राजनीति बारे बोले ना, टिकटॉक जिंदाबाद, इत्थे ही रहना है, ये तो बाहर नहीं आ सकते। कदे कोई भैन चंगे सिस्टम बारे आवाज चुके नहीं, सारा दिन सैल्फियां अगे रहना है। सुभाविक ना भी व्यक्ति उस पासे है, कोई विरला ही है जिहदी कृपा होवे। कहते कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति जो दक्ष की पुत्री है, अंतां दी हुसीन ते सुंदर सी, जिन्हों वेख के कहते राजा इंद्र भी डोलदा सी। ये सारा कुछ क्यों दस रहे हैं बादशाह? इसदा एक बहुत बड़ा कारण आएगा, इसलिए दस रहे हैं। अपने पति नूं आखण लगी, कहती जे तुसी मेरे पास नहीं बैठते मैं बेचारी हो जावांगी। तन पे व्याप्यो अधिक अनंगा, अब उमंग कीजे मम संगा। कृपा करके मेरा काम निवृत्त कर दियो, मैनू इतों दूर कर दियो। ऋषि दी अखां चों पानी आ गया भी ये औरत कादी ते माया है, ये ते शरेआम ही मैनू ये कह रही है भी तू पाप कर्म कर। क्योंकि जात सत पति पत्नी विच भी है। सतयुग दे लोग फकीर साधु जति सदी होंदे सी, पर वो आखण लगी कहंदी अग लगे तेरी भगती ते अग लगे तेरे जत साधन, मेरे दुख नूं दूर करो। कहते बार बार वही गल्लां। ते वो कश्यप ऋषि बैठा सोचे मैं जग संपूर्ण कीता है, मेरे जग दे विच देवी देवते प्रसन्न होए, मैनू रब मिल जाना है, ओदी प्राप्ति दे वास्ते मैं बड़ा करीब आ गया हां। काम संग में पीड़ित भारी,
ਇੱਕੋ ਜਿੱਦ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ मैं काम नाल पीड़ित हाँ, मेरे काम नूं निवृत्त कीता जाए। साधु डरदा सी भी एडी वड्डी भगती कीती, बंदगी तप कीता, सारा खूह खाते चला जाएगा। बाणी लिख रही है ना, हे कामं नरक विश्रामं बहु जोनी प्रभावण है। सतगुर कहते एक काम ही है जिहड़ा नरकां च लै जांदा है, बड़ियां जूनां च बंदे नूं भटका दिंदा है, क्योंकि ये एक सैकंड दा फल है, रोड़ दिंदा बंदे दी भगती, गवा दिंदा, इहदा जप तप सब कुछ मिट्टी कर दिंदा है। बड़ा कुछ समझाया जी, पर कहते जो बंदा बेकारी होया होवे ना, कुछ नहीं दसदा, ना ही कुछ सुनदा हुंदा ए। आतर वैसर नागत आवे, जो किरपाल नहे मोग पठावे। फकीर दे चरण फड़ के आखन लगी, जे मैं तुहाडे कोलों ना मंगा ते मंगा की दे दूं, पत्नी हां तुहाडी, हक रखदी हां, किरपा करो मेरे अंदर दी वासना नूं दूर कर दिओ। कश्यप ऋषि ने फिर हाथ जोड़े, कहंदा भावे पैरी हथ लवा ला, मैनू गंदला ना कर, मैनू रब दी बंदगी जोगा रहन दे, क्यों पाप कराउनी है। करे कील ते जन्म तत, तब मैं सुख पामू भल भांता। आखिरकार रो करके अदिति ने इथों तक कह दिता, ठीक है तुहाडी मर्जी ते मैं घर छड्ड के चली हाँ। ਜਦੋਂ मैं लोगों के घरां विच बच्चियां नूं खेडदे वेखदी हां, मेरे कालजे च सल पैंदे आ, मेरा भी चित करदा मेरे घर एक नहीं दो पुੱਤ होण। देखो लड़ रही है ना, इच्छा की सी, दो पुत्रां दी इच्छा सी, दो दी। एक ही है, ये है संकल्प, मन विच संकल्प सी पुत्र दी प्राप्ति हो जे। सुन कश्यप निजति की बानी, बोलियो ताहि करत सन्मानी। कश्यप ऋषि ने अपने सुभाव के मुताबिक बड़े सन्मान नाल कहंदा, हे नारी बेविचारी ना हो, तू एक ऋषि की पत्नी है, तू एक साधु की पत्नी है, तैनू जत सत विच परपक्क होना चाहिए, तैनू ते रब की बंदगी करनी चाहिए, ते ख्याल तेरे सुपने च भी नहीं आने चाहिए। जिहड़े ख्यालां दी तू भावना मेरे सन्मुख रख रही है ना, ये तेरे सुपने च भी नहीं सी होने चाहिए। हुण अदिति ते कश्यप दी उम्र विच फर्क सी। हुण कश्यप जिहड़ा उम्र विच वड्डा है, वडेरा है, ते अदिति दी उम्र अजे 16-17 वरियां दी सी। एज फैक्टर बहुत वड्डा सी। वो अपने पति की गल कित्थे सुने, क्योंकि धर्म लिखदा है, बाणी भी कहती है, क्रोध होवे, हंकार होवे, काम होवे, जदों ये बंदे ते सवार हो जाण, बंदे नूं ना कुछ दिसदा हुंदा, ना कुछ सुनदा हुंदा, उहनूं लगदा मैनूं किहड़ा कोई वेखदा है। कामी बंदे की खासियत है, वो कहता मैनूं कोई वेखदा नहीं, मैं कौन हाँ, मैं किधर वेखदा, मैं की सोचदा, किसी नूं पता नहीं लगदा। चंद्र बदन तू मोको प्यारी, करो कामना पूरब थारी। आखिरकार फकीर ने डले करना चाहा, हाथ जोड़ के आखे, कहंदा हे सोहणे मुखड़े वालीए, तारीफ ही करनी सी, पता भी इन्नी क तारीफ कर दो जिहड़ा मर्जी काम करा लो। सुभावक है तेरे घर च कोई भी काम किसी ने लेना होवे, हर पति को तरीका होंदा, बड़े जी तारीफ कर दिओ, जिहड़े काम ना भी होने होणों भी हो जाते हैं। कहंदे हे सुंदर मुखड़े वालीए, मैनू पता है तू एक महान तपस्वी दी पत्नी है, तेरा किहड़ा तप घट है। एक बार सुन के ते खुश होगी, पर उन्हें सोचिया भी मैं तप तो की लेना, मेरा की लेना देना तप नाल, मैं एक औरत हाँ, एक पत्नी हाँ, परिवार दे विच मेरे कोल भी बच्चा होवे, पर वो कहंदा तू एक कामना त्याग दे, मैं तेरा सन्मान करदा, क्योंकि मेरे ते रब दे विच कोई बहुता बखरेवा नहीं रह गया। मैं चाहना अपने जत सत नूं अगे लै जा, पर जे तू मैनू इत्थे डुला देगी ना, मेरी कई कराई सारी दी सारी भगती इत्थे बिखर जानी है। संध्या काल बीत है जब ही
मैठन करूं संग तुझ तब तब ही। पर वो औरत आखन लगी कहती नहीं मैं विकार भोगना ते हुणे ही भोगना। साधु कहते समा वेख केड़ा उत्ते संध्या दा वेला जिन्हों आपां कहने आ सोदर रहरास साहिब जी दा टाइम। कहते कर्मा वालीए ऐस वक्त एक राक्षस भी विकार नहीं भोगदा, कोई पशु भी ऐस वेले विकार नहीं भोगदा, मैं ते फिर एक साधु हां। ये बेला लख घोर विशाला काम चेष्टा को नहीं काला। ये वेला नहीं ये कर्म करन दा काम चेष्टा दा, ये वेला ये बंदगी दा इबादत दा भगती दा। अगो उठ के आखन लगी मैं की लेना तेरी भगती, तेरे कोल जद भी मैं कोई दिल दी गल करा तू भगती 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 करदा रहना। हुण कश्यप दा हिरदा सड़ गया। देखो एक विकारी पुरुष ना जुड़े होए नूं भी जुड़िया नहीं रहन दिंदा। खुदा दा नाम दरसा रहे ने सतगुरु। देखो कहंदी एक औरत पापां दी क्यारी पाप कर्म विच डुबी हुई, एक साधु दा जिउणा उन्हें हराम कीता पिया है, बंदगी वाले दा कश्यप ऋषि दा। आउण वाले समय च तुहानूं पता लगना भी कश्यप ऋषि कौन है। ये ते ओ रब दा प्यारा सी जिहदे अगे पिछे देवी देवते मत्थे टेकदे फिरदे आ भी सुनिया तू रब दे नेड़े है, सानू ते रब मिला दे। इन्ना नेड़े होना, एडा त्यागी होना जिहदे ते कोई काम भी भारू नहीं सी, क्रोध भी भारू नहीं सी, पर कहते अपनी ही पत्नी अज काम दे तीर मार रही है। कवि जी ने प्रसंग की आरंभता विच ताइयों ये मंगलाचरण कीता सी भी सच्चे पातशाह तेरे चरना की ढाल जिन्हां कोले आ जाए ना उथे काम क्रोध दे तीर कदे नहीं सताउंदे। शंकर फिरत लिए गण संगा भूत प्रचर्या हित अमंगा। अदिति पूछदी है संध्या वेले क्यों नहीं मिल सकते। साधु कहता एक ते भगती दा वेला है, दूजा शिव जी दे गण विचर रहे ने, घुम रहे ने, भूत प्रेत तुरे फिरदे। हर जीव सवेर होवे भावे शाम होवे संध्या वेले रब रब चिंते करदे आ। बेकारी बंदा इस वेले विकार भोगदा है ते बंदगी वाला वो कहता नाम जपण दा वेला रब ने दो वेले दिते आ, भावे वो सवेरा है भावे वो शाम है। पर अदिति मनण वाली नहीं सी, उन्हें अपनी जिद बरकरार रखी। पर साधु ने स्पष्ट कह दिता भी शिव दा वेला है, इस वेले शिव तुरे फिरदे आ त्रिशूल लेके, आ वेले पाप नहीं करेगा। इस वेले दा कीता होया कर्म पुश्ता तेरियां भुगतणगियां। रुकम समान पसम तन कीनो अगन तरन सस जे दृग तीनो। ते फिर साधु ने गुस्से विच आके कह दिता जे तू इस भट्ठ विच अग विच सड़ना ही चाहनी आ ते सड़ जा, मैं किन्नी क बार बचावां तैनूं। जे कोई डुबना ही चाहुंदा ते फिर डुब ही जाए। जदों कश्यप ऋषि ने एक बार झिड़क दिता ना भी ये वेला बंदगी दा है, शाम दा वेला, संध्या दा वेला, सूरज डुबण दा वेला है, किहो जी इच्छा रखी फिरदी है, ये पाप दी विरदी है। ऐसी कला नहीं शोभदी। परमात्मा ने हर चीज दा वक्त ते वेला बनाया है। पर कहंदी जदों ने कोई गल ना सुनी वो रोई, कहंदी मैं अपने पिता दक्ष कोल जाके आखांगी पिता कैसे साधु दे लड़ लाया है जिन्हें मेरी जिंदगी नरक बनाई हुई है। हर वेले रब रब करदा रहिंदा ए। पूजन समय ताही कूजन हो केल करन को काल न मन हो। हुण फकीर तां टालदे सी क्योंकि साधुआं नूं कुछ दिस रहा सी भी कोई अवग्या होने वाली है, कुछ बुरा होने वाला है। ते संसारी बंदा कहता मेरी मर्जी मुताबिक मैं जो चाहना हुंदा क्यों नहीं। अदिति चाहती सी विकार भोगने, पर कश्यप ऋषि चाहते सी भी जे ये वक्त टल जाए क्योंकि भगती दे वेले माड़ा कर्म कीता नरकां नूं ले जावेगा। दिन मैठन ते आजु कुटाए पूरव दिन दुर सुत जन्माए।
उठ के जो साधु बाहर आ गए ना अपनी कुटिया तो, पत्नी अदिति पिछे आई फिर बोल रही है, आखन लगे भगवान ने एक ते संध्या वेले मैथन नहीं करीदा, उम्र घट जाती है, दूजा ऐस वेले पुरब का दिन चल रहा है, पुरबां दे दिन ने, जे इन्हां वेलियां दे विच माड़ा कर्म हो जे घर दे विच धी पुत नहीं राक्षस पैदा हुंदे ने। साधु ने भी समझाता, पर कहंदे वो कित्थे सुणदी है जी, क्योंकि कामदेव भारू होया है। काम एक देवता है जिहदे प्रथाए सतगुरां ने भी लिखिया होया भी ये जिहड़ा काम आ ना इह तो बचो। बचिया किवें जाना है, जद गुरु की शरण विच आवांगे, सतगुर की गोद विच आवांगे, क्योंकि ये जिहड़ा देवता ना इहनूं कहंदे अनंग, इहदा नाम है, ये नहीं बख्शदा तुसीं। जद नज़र भर के वेखे ना फिर उमरां भी नहीं बख्शदा, रूप रंग भी नहीं बख्शदा, ये जून भी नहीं बख्शदा, पर जिन्हों रब बचावे ना उन्होंने फिर डुला कोई नहीं सकता। भाई जोगे वर्गिया ते भी भारू होया, गुरु कलगीधर पातशाह ने बचाया। ये सब तो बड़ा देवता है देवां दे विचों, इहदे उलझाए हुए लोग कदे ताप नहीं आउंदे। क्यों ए संध्या दोख पर मन हो, शिव की दृष्टि बचावण ठान हो। ते साधु ने स्पष्ट फेर कह दिता, मैं चाहना तू शिव की दृष्टि तो बच बच बच, क्योंकि वो साधु इहो जिहा है जे उन्हें माड़ा कर्म इस वेले वेख लिया उन्हें श्राप दे देना, श्राप। क्योंकि शिव को जिन्ना सनातन लोगों ने बदनाम करता इन्ना थोड़ा है। देवते की सी ते लोगों ने बना के की रखते, बिरती किहो दी बनाती, पुराणिक कथावां जोड़तियां, जो लोग आप करते सी वो देवतियां दे नाम ते थपदा। वो शिव वर्गा साधु कौन हो सकता जिन्हें 88 हज़ार साल एक चौंकड़े ते बह के रब दी इबादत कीती होवे। जी तो कश्यप ऋषि भी डरदा है भी जे मैनू विकार भोगदे नूं उस शिव ने देख लिया ना, वो की आखेगा भी वाह वे कश्यप तैनू कहंदे सी तू रब दे नेड़े है, जे रब दे नेड़े रहण वाले भी दिन वेला नहीं वेखदे ते फिर इहो जे साधु दा करना की है। पर आखिर साधु बेचारा की करे। कई बार ना परिवार का कोई इहो जिहा मैंबर हुंदा है जिहदे फैसले ते फुल चढ़ाउणे पै जांदे आ ते बंदे नूं पछताउणा पै जांदा है। पर अदिति ना मनी, बहुत कुछ बोली। कश्यप ऋषि ने फिर रब अगे अरदास की, रबा मेरेया जो होएगा तेरी रजा जो होएगा। हुणी दिती जब अस विद्वानी, मन से जबान ते अकलाने। और ज्यों-ज्यों साधु रोके त्यों-त्यों काम दे तीर होर सताउण। सुभाविक गल है जी, हंकार होवे, लोभ होवे ते काम होवे, बंदा जिन्ना अवॉइड करदा जाऊ ये विकार उन्ना ही ढाउंदे जाणगे, उन्ना ही छड्डी जाणगे। मोह तो जिन्ना बचण दी कोशिश करोगे मोह उन्ना हैवी हुंदा जाऊ, उन्ना प्रभावशाली हो, दबी जाऊ बंदे नूं। आखिरकार साधु ने तां सोच ही लिया भी मना मेरेया जन्मा जन्मा दी कीती तपस्या तेरी अज तबाह होण लगी है। पता नहीं किन्ने कठिन तप कीते, रब नूं मिलण दी वारी सी, सोचिया शायद ये वारी दोबारा कदे प्राप्त होनी नहीं। बार बदू जिब तज कर ब्रीड़ा, पत को बसन गयो हित क्रीड़ा। अजे ते सोचदा ही सी, पत्नी ने बस्तर फड़िया धरती ते सुट दिता। अज कश्यप ऋषि रोया। कश्यप एक बंदगी दी मूरत, वो अपने आप तो शर्मिंदा होया, मैनू ते देवते मत्था टेकदे सी, ब्रह्मा दी मैनू वेख संघासण ते नहीं बहिंदे, विष्णु उठ पैंदे आ भी कश्यप तेरे वर्गा कोई नहीं, तू ते रब दे करीब आ। अज भुब्बा मार के रोया, रब्बा अज तू मेरा मान तोड़न लगा। आखो सतनाम। मैनू लगदा सी मैथों वड्डी बंदगी नहीं किसे दी, मेरे तो वड्डी भगती किसे दी नहीं। अज मैं कामदेव दे सामने खुद नू हारिया महसूस करदा, मैं बेबस हां। कहो न रहो जात मुझ पाही, करो कील पत अब चित चाहे। साधु ने पत्नी के सिर ते हाथ भी रखिया, मंत्र भी पढ़े, पर नहीं।
कहते जो बुद्धि भ्रिष्ट होंदी है ना फिर वो किसी की सलाह नहीं लेती। जो अकल बंदे की डिगदी है ना, कहते डिगी हुई अकल ने अज उस साधु नूं भी भ्रिष्ट कर दिता। ओदा भी जीवन का जत सत जो हजारां सालां तो संभाल के रखिया वो भी तोड़ दिता है। कश्यप कुमारत तिह देखी गमन्यो जहां एकांत बसेखे। कश्यप ऋषि ने ना चाहुंदियां दिल ते पत्थर रख के वो कर्म कीता जो नहीं सी कर सकता, पर कर्म भी ऐसा हो गया जी कहते अपनी नजर शर्मिंदा भगती करन नूं बहिंदा है, भगती च चेता नहीं लगदा, चौंकड़ा लाउंदा है चौंकड़ा नहीं लगदा, रब रब करना चाहुंदा है अंदर ख्याल ही नहीं आउंदा। कहते वो एक साधु जो पाक पवित्र सी पापां दे नाल भर गया। कहां जाए दीनो रत दाना ये तन मन सिजताप मिटाना। पर इस दिन तो बाद कश्यप ऋषि ने प्रण कीता मैं ऐसी औरत दे कदे मथे ही नहीं लगना। कहते छड्ड के पत्नी रोंदा होया जंगलां च आके बह गया, भुब्बा मार के रोंदा रब्बा मैनू अपनियां ने लुट लिया, मेरे पल्ले कख नहीं रहा। हुण मैं बड़े मान नाल कहंदा सी रब्बा मैं तैनू प्राप्त कर लेना, मैं तेरे नेड़े आ गया तू मेरा मान तोड़ दिता है। मर जाए संध्या तिह कीने त्रिपुटी जाप विखे मत पीने। फिर वो चौकड़ा ला के बैठा संध्या दा वेला त्रिकुटी दे विच ध्यान धरदा पर रुकदा ही नहीं ध्यान, क्योंकि बेकार जड़ां च बह गया। भावे कि ना चाहुंदियां बेकार भोगना पिया, पर साधु दा ध्यान ना लगे। आखिरकार अरदासां कीतियां बेनतियां कीतियां परमात्मा अगे रब्बा तरस कर मेरे ते, मेरा की कसूर सी, एक पापी ने मैनू इस बहन विच बहा दिता। कहते हौली 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 बिरत अकागर हो गई जी, क्योंकि इह साधु दा ते कसूर कोई नहीं सी, ਉਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ नहीं सी इस विकार वाले पासे जाना। चलो जो गुरु की कृपा रब दी हुई मन लग्या, कहते लगे हुए मन विच शिव ने आके आवाज दी भगता तेरा मन पवित्र है इसलिए तेरा तन भी पवित्र है, क्योंकि तू मन करके मैला नहीं सी, तेरे मन विच पाप नहीं सी। जिस औरत ने पाप कीता तेरी भगती नूं बर्बाद कीता है ओनू भुगतना पैना है। पछे पछताने लजा जुत दृग तरस कचाने। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਦਿਤੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਪਛਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਿਰ ਪਛਤਾਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਆਈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਸਾਧੂ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। हथ जोड़ के आखन लगी है ऋषि देव मैथों पाप हो गया। कश्यप के समीप चल आए शिव के पैते गिरा आलाए। कहते साधु ने अख खोल के भी ना वेखिया भी कौन है, उन्होंने ते अपना फिक्र पै गया भी मेरा जत सत गया, चरण फड़ के रोन लग गए। आखिर जो रोन की आवाज सुनी उन्होंने तरस आया। कश्यप ऋषि ने अखां खोलियां, कहते की होया, कहती जी मैनू शिव जी तो डर लगदा है, तुसी किहा सी ये भगती दा वेला है, मैं भगती दे वेले अज पाप कमाया है। ये पत गर्भ मोहे कल्याणा जिस धर से शिव करे नहाना। हे साधु जे कुछ देना चाहुंदे हो एक वर दे दिओ। कहंदा मंग, कहंदी मेरा गर्भ खराब ना होवे, मेरी कोख विच पैदा होने वाले बच्चे शिव मार ना दवे, क्योंकि मैं भगती दे वेले पाप कीता ते उन्हें मार देना, उन्हें गण छड्डे होए अपने भी जो कोई बंदगी दे वेले भावे अमृत वेले या शाम वेले जिहड़ा विकार भोगदा है उम्र घटा दिओ, उहदे घर च कलेश पा दिओ, सोग पा दिओ। डर गई साधु कहंदा बीज तू बीजे आ, पाप तू कीता है, अज ना कल भुगतना तैनू पैना ही है। नमो नमो तिह की पद कंजा महादेव सेवत सुर पुंजा। बार बार करे अरदासा करे हे महादेव
बख्शो मैनू, मैं पापण ने पाप कीता, मैं अपराधन ने अपराध कीता। ऋषि कहंदा ये ते मौज आ ओदी, बख्शे ना बख्शे, पर कीते हुए कर्मां दी सजा तैनू भी मिलनी है ते मिलनी मैनू भी। आखो सतनाम। साधु दुखी होके कहन लगा, देखो उन्हें ते माड़ा कर्म कीता कोई, पर किसी गंदली रूह ने गंदला करन दी कोशिश पूरी कीती। पर साधु कहंदा तू दुख भुगतेगी, भुगतना मैनू भी पैना है। मोहे अवज्ञा क्षमा करीजै, ये स्वभाव लख मन न रसीजै। पर हुण साधु गुस्से च आके कहंदा ए अजे ते मैं शराप नहीं दिता ते कहंदी कृपा करके मैनू बख्शो, मेरा औरतां वाला सुभाव सी, मेरी जनानियां वाली मत सी, मैं नहीं सोचिया। क्योंकि जिस पत्थर ते मर्द सोचते आ औरतां नहीं सोचदियां। अज भी भोलियां ने, अज भी किते ना किते दिल वरत लैंदियां ने दिमाग दी थां ते। उस वेले उन्हें माफी भी मंगी, पर साधु कहता नहीं, देर हो गई, वक्त हो गया, मैं कादा साधु, मैं अपने परिवार लई सोचा। साधु ते वो है जो संसार लई सोचता है। जिहड़ा टब्बर पालदा होवे वो साधु थोड़ी है, जो परिवार पालदा होवे वो फकीर थोड़ा हुंदा है। कश्यप कहंदा नहीं, कर्म माड़ा ते माड़ा ही है, संध्या वेले कीता, एदा फल पूरी दुनिया वेखेगी। सुन कश्यप बोलियो तब मानी, आहो अपद्रे नार अजानी। फिर गुस्से विच आके कश्यप ऋषि आखन लगिया, हे दुष्ट औरत चली जा इथों बाहर। माफी मंगी, कहंदी महापुरख मैं ते माफी मंगण तुहाडे तो आई। कहंदा नहीं, तू माफी दे लायक ही नहीं। मेरा जग सत भंग कीता, मेरी बंदगी तोड़ दित्ती, मेरी सुरत तोड़ दित्ती, तैनू रब ने बख्शना नहीं। दवै सुत जन्मे अदम कठोरा, देह सर्व जग को दुख घोरा। यो आखे जी तुसी शराफ ना दियो, कहंदा शिव दा ते मैनू पता नहीं शराफ दवे ना दवे, पर याद रखी तेरी कुख तो दो एहो जे पुत पैदा होणगे, दुनिया दे सब तो वध नीच, सब तो वध पापी, सब तो वड्डे अपराधी होणगे। आप दुखी होणगे ते पूरी कायनात दुनिया नूं सताउणगे। आखो सतनाम। कहंदी महापुरखा पुत ते तेरे होणगे। कहंदा फिर की होया, भावे मेरे ही होण, पर कीते कर्मां दी सजा ते मिलनी चाहिदी है तेरे इस गर्भ तो, क्योंकि तू संध्या वेले ये माड़ा कर्म कीता। जो एक दिन ते रात मिलदे आ उन्होंने कहंदे संध, कहंदी भगती दे वेले तू पाप कर्म कीता है, तेरी कुख तो राक्षस पैदा होणगे। कसम करे अनेक प्रकार, निहित धरे विष्णु अवतार। कहंदे अनेकां तरह दे पाप धरती ते करनगे, इन्हां पापियां नूं मारन वास्ते विष्णु नूं आप अपना अवतार धारण करना पैना है। कहंदे जदों ना अदिति ने सुनिया एक बार ते धा निकल गई। मैं कहा सी शिव ना श्राप दे दे, पति ने श्राप देता, साधु ने देता। सच्ची जी साधु साधु हुंदे आ, पर होवे पूरा। साधु का अपना कोई परिवार नहीं हुंदा, ओदा सारा संसार ही परिवार हुंदा है। जो वचन कहना सी उन्हां कह दिता। कहंदी जी फिर मेरे दोने पुत्र जो तुहाडे पुत्र भी होणगे राक्षस होणगे। कहंदे बिल्कुल, मैं भगती वाला सी, मेरी अंश भगती वाली सी, पर तू ते पाप कर्म कीता ना, राक्षस बन गए। तेरे उस पाप कर्म का फल तू ते तेरियां कुलां भुगतणगियां, सारा ही परिवार भुगतेगा। कर संग्राम हनेंगे तिनको, संध्या धरियो गर्भ ते जिनको। तू संध्या वेले गर्भ धारण कीता ना, ते विष्णु आप आके तेरे इन्हां दोने पुत्रां नूं मारनगे। वेख संध्या वेले दा फल, पाप कीते तो राक्षस पैदा होए, ते संध्या वेले करके ये दोने कदे जिउंदे नहीं रहणगे। आखो सतनाम। मरना पैना इन्हां नूं। मां दे हुंदे पुत्तां दा मर जाना छोटा दुख है कोई। कहंदी रोई, मंगेगी। कहंदी हाँ मैनू पता, मैं जो बीजिया मैनू ही वढना पैना है। अब सो
सुत को सुत भगत परदाना होवोगे समदृष्ट सुजाना। कहती फकीरा वो साधुआ अपने ही पुत्तां नूं शराप दे गया, अपनी पत्नी नूं शराप देता। वो कहता साधु रब दे प्यारे होंदे दुनिया दे कुछ नहीं लगदे। हाँ मैं भी पाप कीता सी पर मेरी एक अंश मेरे पोतरे दे रूप दे विच घर विच पैदा होऊगी, पुत तेरा ही मारेगा ते वो परमात्मा आके उन्हें बचाएगा। वो सी भगत प्रहलाद। ये जी कथा चलती है ना, भगत प्रहलाद जी दे दादा दादी जी की कथा, पटिया की जिन्हां दा जिक्र आ रहा है। कहते पोता तेरा भगत होएगा, उस भगत नूं बचाउण वास्ते परमात्मा आप आउणगे, पर पुत्र तेरिया नूं मार के जाणगे। जदों अदिति ने सुनिया भी पोता बच जू, पुत मर जाणगे, फिर भी सोचिया कहते तां भी कोई गल नहीं, अंश विचों कोई ते बचूगा। आखो सतनाम कोई ते बचूगा। भाई मर्दाना जी ने पूछया ना मरदे राक्षस क्यों पैदा हुए? हरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, हरणाश, इन्हां दी उत्पत्ति क्यों हुई? इन्हां नूं क्यों मारिया वराह ने? वो सारा जिक्र सुना रहे आ। बड़ी प्यारी ये कथा है, क्योंकि अज की कथा थोड़ी जी इधर उधर सी, पर मैनू नहीं लगती इधर उधर। क्यों? क्योंकि जो तुहाडी बिरती गुरु चरनां च होवे ना, तुसीं सत संग च बैठे हो गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच, मजाल है तुहाडे अंदर कोई ख्याल माड़ा भी आ जाए, गलत भी आ जाए, ते जे बिरती माड़ी है फिर सत संग च बह के माड़ी होगी, ते फिर बाहर कित्थे भला होना है, बाहर कित्थे मन टेक जूगा। बड़े प्यार विच गुरु नानक साहिब महाराज ने ये सारी कथा सुनाई। मैं फिर भी मर्यादा विच रह के कोशिश की भी उस चीज़ नूं इन्ना भी ना खिलारिया जाए, क्योंकि चलो वैसे तो कोई वड्डी गल नहीं अज दे युग दे विच हर चीज़ खोल के सुनाउणी चाहिए है। असीं सिखां दी मार ही तां खाधी है, असीं बस लकीर दे फकीर बने आ भी जिवें भाई साहब ने पढ़ता उवें सुना दो। नहीं, ये युग खोल के सुनाउंदा है। हर धर्म अपने धर्म की गल खुल के सुनाउंदा है। वो तां अपना प्रचार कर गए, असीं सिर्फ दबी जुबान नाल बोलते रहे तो लोग अज साडे विरुद्ध बोलण लग गए, पंथ के विरुद्ध बोलण लग गए, क्योंकि पंथ ने कदे खुल के गल ही नहीं सी की। गुरु साहब की कृपा हुई है, आप इन्हां प्रसंगां नूं बड़े अदब सहित सरवण कर रहे हैं। ये जो प्रसंग ने ना, ये गुरबाणी विच हिंट मिलते हैं। ते दसम ग्रंथ जी की बाणी जो आप पढ़ते हैं ना, उत्थे वराह का जिक्र होंदा है 24 अवतारां दे विच। उन्होंने अवतार क्यों धारण किए, हिरण्यकशिप नूं क्यों मारिया, मारन का कारण की सी, वो सारे कारण शुरू हो गए ने। जिमें जिमें महाराज कृपा करनगे आनंद माणांगे। वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू।